आदाब नाजरीन, मैं हूं रिफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय हमजा कलेक्शन। हमजा कलेक्शन, अरसलान बिरयानी, अरसलान किंग ऑफ बिरयानी एंड को स्पॉन्सर्ड लिव अब्रॉड। सीधे बढ़ते हैं आज की अहम तरीन खबरों की जानिब। अब फौजबिकी ने भी की शिल्पांचल के डेवलपमेंट के लिए मास्टर प्लान की मांग। याद हो कि कुछ रोज कबल साबिक मेयर और बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आसनसोल के डेवलपमेंट के काम के लिए एक मास्टर प्लान बनाने का जिक्र किया था और फिर सोशल मीडिया के जरिए भी मास्टर प्लान की बात तिवारी लगातार कर रहे हैं। आज फौजबिकी के बैनर तले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी तंजीम के सेक्रेटरी सचिन राय और चेयरमैन सुभाष चंद्र अग्रवाल और सदर आरपी खेतान ने मास्टर प्लान की बात कही है। इस दौरान 3 नुक्तों पर बात की गई है, जिनमें दामोदर नदी पर पुल के तामीर की बात की गई। दूसरे मुद्दे में गारोई नदी के मसले को उठाया गया ताकि बाढ़ के कहर को रोका जा सके। तीसरी और अहम बात बर्नपुर में हवाई अड्डे की तामीर पर की गई, जिससे आसनसोल के लोगों का फायदा हो और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल पाए, क्योंकि जब ऐसे काम आसनसोल शहर में होंगे तो जाहिर है कि रोजगार काफी हद तक बढ़ेगी। इन्होंने बताया कि दामोदर पर पुल की तामीर के लिए रियासत की वजीर आला ममता बनर्जी, वजीर मलाय घटक, एडीडीए चेयरमैन तापोस बनर्जी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर समेत जिला के सभी अफसरों को लेटर देकर गुजारिश की गई है। বর্ষা হলো, এই বর্ষাতে যে কিভাবে আমাদের আসানসোল ওয়াটার লগিং হয়েছে এবং ওয়াটার লগিংয়ের জন্য আমাদের ব্যবসায়ী বন্ধুরা কিভাবে সাফার করেছে, নাগরিকরা সাফার করেছে এবং কত লস হয়েছে, সেই লসের জন্য আমাদের মাননীয় মন্ত্রী এখানে এসেছিলেন। আপনারা জানেন আমাদের এখানকার মাননীয় মন্ত্রী আমাদের অনারেবল মিনিস্টার মলয় ঘটক সাহেব ছিলেন। আমরা যাতে যাদের লোকসান হয়েছে তাদের কম্পেনসেট করা হয় তার জন্য আমরা আবেদন করেছি, কিন্তু সেই কম্পেনসেট এখনও পর্যন্ত কার্যকরী কিন্তু হয়নি। তারা যাতে হয় সেটা আমরা ডিমান্ড করব, তাদের যাদের লোকসান হয়েছে তাদের যেমন দেওয়া হয়, এটা আমাদের ডিমান্ড থাকবে। এবং যে জন্য ওয়াটার লগিং, যে গাড়ুই রিভার, তার জন্য যেমন মাস্টার প্ল্যান করা হয়, কারণ গাড়ুই রিভার এবং তার সঙ্গে নুড়ি নদী কানেক্টিভিটি রয়েছে। আপনারা জানেন সব যে নুড়ি নদী এবং গাড়ুই রিভারের ওয়াটার লগিংয়ের জন্য এনক্রোচমেন্টের জন্য এই সায়েন্স বলছে যদি আমাদের ক্লিয়ারেন্সটা ঠিক না থাকে ওখানে এনক্রোচমেন্ট হয়ে যায়, ন্যাচারালি সেটা ব্যাক প্রেশার হবে, ওয়াটার লগিং হবে। অতএব মাস্টার প্ল্যান যেখানে দরকার গাড়ুই রিভারের যেগুলো এনক্রোচমেন্ট আছে সেগুলো হাটিয়ে একটা মাস্টার প্ল্যান করে, যাতে ইন ফিউচার এটা না হয়। এই বছর হয়েছে ঠিক আছে, আগামী বছর যদি এরকম আবার হবে তো প্রতি বছর হয়ে থাকবে। তার জন্য সরকারের কাছে আমাদের ডিমান্ড একটা মাস্টার প্ল্যান করা গাড়ি রিভারের জন্যে, এবং আগামী দিনে ইন ফিউচার যাতে কোনো নাগরিক, কোনো ব্যবসাদার কেউ যাতে এভাবে লোকসান না হয়। এবং আসানসোলের ব্যাপারে আমাদের মাস্টার প্ল্যানের করার জন্য আমাদের আবেদন থাকবে, যাতে আসানসোলের উপরে যেমন কলকাতার পরে আসানসোল আমাদের সিটি, কলকাতার একটার পর একটা ফ্লাইওভার হচ্ছে কিন্তু আসানসোলে একটা ফ্লাইওভার নেই, অথচ ট্রাফিক জ্যাম, ট্রাফিক বাড়ছে, পপুলেশন বাড়ছে। আমাদের জিডির উপরে একটা ফ্লাইওভার আমাদের ডিমান্ড থাকবে যে জিডির উপরে একটা ফ্লাইওভার করা হোক, যাতে আসানসোলের ট্রাফিক জ্যাম কিছুটা প্রবলেম সলভ হয়। এইগুলো আমরা ফৌজবিকির তরফ থেকে আমরা ডিমান্ড করব, এবং যেগুলো হকার এগুলো আছে এগুলোর জন্য যাতে একটা মাস্টার প্ল্যান করা হয়। এর আগেও হয়েছিল, ওদের রিহ্যাবিলিটেশনের জন্য জায়গা দেওয়া হয়েছিল, ফুটপাথ উচ্ছেদ হয়েছিল, কিন্তু তারপর আবার বসে যায়। এইগুলো যদি একটা মাস্টার প্ল্যান করে ওদের রিহ্যাবিলিটেশন করা হয়, হকারদের রিহ্যাবিলিটেশন এবং ফুটপাথ মুক্ত করা হয়, কারণ সব সময় আমাদের ঘরে, আপনার ঘরে সব ছেলেমেয়েরা ফুটপাথের উপর দিয়ে যায়, কিন্তু ফুটপাথ দিনের পর দিন এনক্রোচমেন্ট হয়ে যাচ্ছে, এটা অসুবিধা হচ্ছে। তাই ফৌজবিকির তরফ থেকে আমরা এবং সমস্ত চেম্বারকে সঙ্গে নিয়ে আমরা সরকারের কাছে এটা আবেদন রাখবো। এ বিষয়ে আরও কিছু বলব। कुल्टी है, नियामतपुर है, बड़ागढ़ है, रूपनारायणपुर है, चितरंजन है, इधर जामुड़िया है, उधर रानीगंज है। बाकी हमारे जितने पंचायत के इलाके हैं उसको छोड़ करके जितना आसनसोल नगर निगम के अंतर्गत आता है उसका एक मास्टर प्लान बनाया जाए। अभी हमारे सेक्रेटरी ने कहा है कि कलकत्ते में 60 फ्लाईओवर हैं, हमारे यहाँ पहला फ्लाईओवर में शुरू हुआ। अरे भाई, आसनसोल इज दी सेकेंड बिगेस्ट सिटी ऑफ बंगाल, जरा सा उसको मर्यादा दीजिए, कुछ इधर भी खर्च करवाइए। एक फ्लाईओवर यहाँ पर बने जहाँ जहाँ जरूरत है। क्या जैम की क्या पोजीशन है वो आपसे
हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं। आप लोग मोटरसाइकिल पर सारा दिन घूमते रहते हैं, धूप हो या बारिश हो या जो भी हो, जैसा भी वेदर हो। तो इसलिए आप लोग भी जरा सा इस आवाज़ को बुलंद कीजिए, बीच बीच में सीरीज के रूप में छापिए कि आसनसोल के लिए मास्टर प्लान बने, फ्लाईओवर्स बने, जहाँ जरूरत हो टनल बने। वो हम कल गए थे उधर ये पुल पार, क्या बोलते हैं आप, रेल पार, उसका जो वो रेल का पुल है, पानी का कितना जमा हो जाता। आप ही लोगों ने लिखा था क्या दिन पहले, 2-3 दिन तक ट्रैफिक बनती है उसके चलते। उसकी जरा आवाज़ बुलंद कीजिए कि आप लोग मिल के हमारे साथ लड़िएगा तब न होगा। हमको जितनी बार बुलाइएगा हम आपके साथ प्रेस और जो नदी के नाले निकलते हैं वो सब जाम हो जाते हैं। अभी जो बस्ती बाज़ार में वहाँ जो बाढ़ आई थी, तो जिससे कपड़े व्यापारियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो मेन कारण यही था कि जो पद्दू तालाब जो है वो ओवरफ्लो हो गया था, नाला जाम हो गया था, नाले के ऊपर भी 5 फुट 6 फुट तक पानी बहा, उसके चलते ये नुकसान हुआ। तो नाले की नियमित सफाई होनी चाहिए, ये सब मास्टर प्लान में होना। और तो सब बताएंगे इन्होंने आपको। कुल्टी थाना के तहत NH2 से कल रात पुलिस ने एक ट्रक से कफ सिरप जब्त किया है। मिली जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई रियासती पुलिस की STF के जरिए की गई है। आपको बता दें कि इसी इलाके से कुछ वक्त पहले गैर कानूनी हथियार कारखाने की खबर भी सुर्खियों में आई थी। हालांकि पुलिस इस मामले से फिलहाल कुछ बताने से इनकार कर रही है। सूत्रों से मालूम होता है कि इनमें से 3 पेटी में कफ सिरप हो सकता है, लेकिन अभी कुछ साफ नहीं है। पुलिस के जरिए इस पर बयान आने के बाद ही सच सामने आ पाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई कर रही है। नाजरीन, वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का। বিরিয়ানির নাম আসলেই মুখে জল এসে যায়, আর শিল্পাঞ্চলে বেস্ট বিরিয়ানি মানে আরসালান, কিং অফ বিরিয়ানি। মোর ইয়াম্মি এন্ড মোর হাইজেনিক বিরিয়ানি, আরসালানের বিরিয়ানি। আজকেই ফ্যামিলির সাথে আসুন আর আরসালানের বিরিয়ানি উপভোগ করুন। আমাদের এখানে নানা রকমের বিরিয়ানির ভ্যারাইটি পাওয়া যায়, তাছাড়া রয়েছে চিকেন, মটন আর ভেজের অনেক আইটেম। তাহলে আজকেই আসুন আরসালান, দ্য কিং অফ বিরিয়ানি, বস্তিম বাজার, आसनसोल। क्या आपको विदेश में पढ़ाई करनी है? अपने भविष्य को लेकर आप चिंतित हैं? तो फिर चिंता फिक्र को छोड़ आज ही आए लीव अब्रॉड। जी हाँ, लिव अब्रॉड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी सर्विस, जहां आपको विदेशों में पढ़ाई करने के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वो भी बिल्कुल फ्री में सर्विस दी जाएगी। हम आपको विदेशों के अध्ययन की हर बात बारीकी से समझाएंगे। कैरियर और पाठ्यक्रम के उचित परामर्श देंगे। विदेश के लगभग 10 देशों में स्थित स्कूल कॉलेजों में नामांकन करवाएं, जिनमें कनाडा प्रमुख है। आपके रहने का बंदोबस्त भी लिव अब्रॉड करेगी, साथ ही वीजा की व्यवस्था भी लिव अब्रॉड करेगी। अपने साथ अपने शहर का भी नाम रोशन करें। अब विदेश में पढ़ाई करने के लिए बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं, घर के पास ही पाएं हर सुविधा, वो भी बिल्कुल फ्री एडवाइस विद हेल्प। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें लिव अब्रॉड, NBF टावर अपोजिट चित्रा पेट्रोल पंप, आसनसोल। कॉल करें 7063684907 या 7384602176 पर। समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ OT में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है,
जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में मां के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नोट सेमिनार फ्लोर के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर, अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, जीटी रोड, आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। आसनसोल रेल पार के ओके रोड वार्ड नंबर 25 में आज कांग्रेस पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पे दिवेश चटर्जी, SM मुस्तफ़ा, जाकिर हुसैन, शाहिना परवीन, मामून रशीद खास तौर से मौजूद थे। इस मौके पे SM मुस्तफ़ा ने कहा कि रेल पार को हमेशा से ही नज़रअंदाज किया जाता है। नशाखोरी चरम सीमा पर है, पर इंतजामिया के कानों में जू नहीं रेंगती। इस दफ्तर के जरिए हम लोगों के मसाइल सुनेंगे और हल करने की कोशिश करेंगे। अगर आप नींद से नहीं जागेंगे तो शायद आने वाले कल में आप लोगों को कहीं न कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। सरकार जानती है, ममता बनर्जी की सरकार जानती है, ममता जी की सरकार जानती है कि हमें तो वोट मिल जाता है, कोई बात नहीं, बचेंगे हम लोग। कुशल विकास केंद्र, प्रधानमंत्री कुशल विकास केंद्र, उसमें पास करा हुआ लड़का है, डिप्लोमा पास करा लड़का हुआ है, उन लोग को चाकरी देने नहीं सकता है। आज क्या करेगा तुम लोग को, किनको चाकरी देगा ना, कुशल विकास केंद्र। उसमें आज आसनसोल नॉर्थ वार्ड नंबर 25 में का ऑफिस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑफिस आज ओपनिंग हो रहा है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, चूँकि ये इलाका बहुत ही पिछड़ा और डेंड्राइट स्मैक से भरा है। चूँकि ये इलाका में 5 साल जिस तरीके से इस इलाका को नेगलेक्ट किया गया और जिस तरीके से नशा पदार्थ को बढ़ावा दिया गया, दूसरी तरफ आप देखे होंगे कि जिस तरीके से बाढ़ पानी इस इलाके को चारों तरफ से घेर रखा था, जो लोग बेयार और मददगार लोग फंसे हुए थे, और बहुत सारे इस इलाके का बहुत तरह का काम है जो अधूरा है। और हम चाहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, चूँकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से लोगों के साथ में रह करके कंधा से कंधा मिला करके चलने की कोशिश करती है। चूँकि दूसरी तरफ इस इलाका में पढ़ने का भी रुझान ज़बरदस्त है। आप ये रेल पार इलाका को आप अगर देखेंगे तो ये रेल पार इलाका, आप पूरे पश्चिम बर्धमान आप जाएंगे तो ये रेल पार जो मुस्लिम इलाका है, पढ़ने के मामला में पीछे पूरे पश्चिम बर्धमान को पीछे छोड़ दिया है। क्योंकि यहाँ मजिस्ट्रेट, SDO आप देखेंगे, हर घर में आप जिस घर में भी जाएंगे MA BA LLB आपको मिलेगा। तो एक तरफ पढ़ाई का रुझान है, दूसरी तरफ कहीं न कहीं नशा खुरानी चरम सीमा पर है। इन दोनों के बीच की लड़ाई को हम लोग लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं, ताकि यहाँ का जो युवा, जो पढ़ने का तरफ जो रुझान है, जो कहीं न कहीं कुछ लोग, कुछ पॉलिटिक्स तत्वों के द्वारा यहाँ जो बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी के बीच की लड़ाई है। और दूसरा आप जानते ही होंगे, चूँकि MLA और MP और काउंसलर जो होता है, तो काउंसलर आम आदमी का डायरेक्ट लोगों के बीच में जो काम जो फंस जाता है, ID कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक अकाउंट, तो उसमें कहीं ना कहीं रेसिडेंशियल का बहुत ज़बरदस्त रोल रहता है। तो चूँकि ये आम आदमी का सेवा करने का बहुत बढ़िया मौका है और बहुत ही अच्छा ये है। तो जो लोग जीत करके जाते हैं वो लोग अपने आप को रिजर्व हो जाते हैं, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे। जब हम लोगों ने कांग्रेस भाई कुर्बान अली का नेतृत्व में हम लोग कांग्रेस को जब हम लोग जिताया रहा, तो ये रेल पार ऐसा इलाका था जिसको हम लोगों ने ऑफिस करके दिखाया था। और काम कैसा होता है, ये हम लोग जो लोग रेसिडेंशियल के लिए दौड़ते थे वो सब हम लोगों ने बंद कर दिया। हम लोग चाहते हैं कि इस बार भी हम लोग, जब आने वाला दिन में समय आएगा, तो हम लोग चाहते हैं कि कॉर्पोरेशन इलेक्शन जिस तरीके से हम लोग सुन रहे हैं, अगर आएगा तो हम लोग को कांग्रेस पार्टी इस इलाके में सबसे सटीक और अच्छा रहेगा।
जो तेजिंदर सिंह बालवी ने बोला है वो पूरा डिटेल में उन्होंने आपको जानकारी दे दी है। आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इतिहास में 6 नवंबर का दिन एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। कारण क्या है कि हमारे यहाँ जब से सिख भाई आके बसे हैं पार्टीशन के बाद से तकरीबन 75 साल जिस चीज़ को हो गए हैं, जितने भी हमारे यहाँ गुरुद्वारा साहब बनाए गए वो जब जैसा साधन जिन कमेटियों को मिला उन्होंने वैसा वैसा अपना उसका आकार ठीक किया, शुद्धिकरण जैसे उन्होंने बोला है उसका होते चला। हम लोगों की टीम आने के बाद हमने इस चीज़ की कमी महसूस करी कि हमारे जो गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग है वो काफ़ी पुरानी है और उसका आकार जो हमारे पंजाब के ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं उनके मुताबिक वो खरा नहीं उतर रहा था। तो हम लोगों ने जब से कार्यकाल अपना संभाला है 2020-23 फरवरी से, जैसे तेजिंदर जी ने आपको बताया, ये ऊपर वाले की कृपा थी और हमारे सब भाइयों का साथ था कि हमने रिकॉर्ड टाइम में इस चीज़ को पूरी संगत, इस इलाके की पूरी संगत के मदद से इसको कंप्लीट किया है। और मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि आप लोग भी हमारे धर्म के कार्यक्रमों में रेगुलर आते हैं, आप लोग को भी जब मौका मिले एक बार जाके ज़रूर देखें कि समाज ने क्या काम करना है। और हमारे लिए ये बहुत ही बड़ा एक गर्व का दिन है। सब गुरु नानक नाम लेवा जितने भी हमारे भाई बहन हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बना है वो आने वाले दिनों में कई जनरेशन्स तक ये चीज़ काम में लगेगी और सबके काम में आने वाली चीज़ है, चाहे वो रिलीजियस फंक्शन है, पर्सनल फंक्शन है या जो भी। हम लोग आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने आके आज हमारे प्रोग्राम का ये मैटर पूरा कवर किया है। और आप सबको निवेदन है कि 6 और 7 तारीख को आप लोग जरूर हमारे कार्यक्रम में आएँ, सिर्फ कवर करने के लिए नहीं, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब जी का हिंदू धर्म बोलिए उसके साथ भी एक बहुत पुराना कनेक्शन है। आज उनको हिंद की चादर इसलिए बोलते हैं, ये हम लोग सब जानते हैं किस कारण से। आप लोग जो मोस्ट वेलकम है, जरूर सब उस दिन आए ताकि आप लोग फैक्चुअल देख सकेंगे कि क्या चीज़ बनी है और क्या प्रोग्राम हो रहा है। ये प्रोग्राम कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है क्योंकि हम लोगों ने टाइम शेड्यूल शॉर्ट रखा है, जैसे तेजिंदर जी ने बोला है 2 बजे के अंदर ये सारा रैपअप हो जाएगा। तो आप लोग को विनती है कि सामान निकाल के जरूर आएँ और जब भी जिस भाई को हमारा टाइम मिले हम लोग उस दिन तो आपसे जरूर गुरुद्वारा साहब की कवरेज कराएंगे। हम तो गुरु नानक नगर कम्युनिटी सेंटर में पूरे तकरीबन पश्चिम बंगाल की जो सिख समाज की नुमाइंदा जमात है उनको एकत्रित करके आप सभी प्रेस के भाइयों को प्रेस वार्ता देने के लिए बुलाया गया है। आप सभी को जैसे मालूम है कि ये 2021 का जो साल है ये हमारे 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां साल प्रकाश पर्व के लिए मनाने के लिए हमारी कौम ने निश्चित किया है। और श्री गुरु तेग बहादुर जी का जिनका जन्म 1621 ईस्वी को हुआ था और ये 2021 साल चूँकि इनका तकरीबन अप्रैल महीने की 21 तारीख को इनका जो जन्म उत्सव का डेट है, उस समय पेंडेमिक था और सरकार की तरफ से काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस थे, इसीलिए हमने ये तकरीबन नेशनल लेवल का जो ये सेंटिनरी सेलिब्रेशन है इसको आगे बढ़ाते हुए आज इस नवंबर की 6 और 7 तारीख का जो प्रोग्राम है उसका आगाज करने के लिए आप सभी को बुलाया है। आने वाली 6 तारीख और 7 तारीख, आने वाली 6 तारीख को आसनसोल श्री गुरु नानक गुरुद्वारा मुर्गासोल, जहां पर बहुत पुराना ऐतिहासिक जो इमारत थी हमारे गुरुद्वारे की उसका नवीनीकरण किया गया है। और उस इमारत का जब नवीनीकरण होना था पिछले साल, उस समय भी हमारे जो सर्वोच्च हमारे धार्मिक आगू हैं, हमारे अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, उनके कर कमलों द्वारा वो नींव का पत्थर रखा गया था। और इस पेंडेमिक होने के बावजूद ये अच्छी सूझबूझ और तालमेल का नतीजा है कि आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक रिकॉर्ड समय में
1 साल के अंदर ही इस साल चूंकि 400वां साल हमारे श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म उत्सव का भी है और उस उत्सव को समर्पित ये गुरुद्वारे की जो नई इमारत है इसका भी शुभारंभ करना है। और इस 400वें सेंटिनरी सेलिब्रेशन को समर्पित हमारे धार्मिक सर्वोच्च जो हमारे लीडर हैं उन लीडरों में से सबसे पहला नाम जो है ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी का है, जो हमारे अकाल तख्त साहिब के जथेदार हैं, और हमारी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो हमारी सर्वोच्च संस्था है हमारे धार्मिक मामलों के दिशा निर्देश निर्धारण करने के लिए, उनकी प्रेसिडेंट बीबी जगीर कौर जी वो भी विशेष तौर से इस 6 और 7 तारीख के धार्मिक समागम में पहुंचेगी। तो मैं सबसे पहले 6 तारीख का समागम के बारे में आपको बताऊं कि 6 तारीख को जहां हमारे आसनसोल के मुर्गासाल में स्थित जो ऐतिहासिक गुरुद्वारे की इमारत थी उसका नवीनीकरण का उद्बोधन होगा और हमारे 400 साल का जो गुरमत समागम है उसका भी यहाँ पर तकरीबन सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक पालन किया जाएगा, जिसमें हमारे धर्म प्रचार कमेटी दरबार साहिब अमृतसर के जो हेड प्रचारक हैं भाई जगदेव सिंह जी आएंगे और कीर्तन के लिए हमारे अमृतसर से जो हजूरी रागी है भाई सिमरप्रीत सिंह जी उनका जथा और एक और हमारा रागी जथा जो है और काफ़ी सारे यहाँ के लिटरेट जो प्रचारक हैं हमारे स्कॉलर हैं वो सभी इस 400वें साल को समर्पित समागम के लिए यहाँ पहुँचेंगे। और यहाँ के जो भी यहाँ के कर्ता धर्ता हैं प्रशासन के, समाज के और हमारे पॉलिटिकल पार्टी के या हमारी यहाँ स्टेट की सरकार के उनके नुमाइंदे, हमारे यहाँ के जो मंत्री महोदय हैं श्री मलय घटक जी और सीएम साहिबा का भी जो लिखित में हमने उनसे आवेदन किया था उनका भी एश्योरेंस है। उनकी डेट शेड्यूल जो है 6 तारीख को आएंगी कि 7 तारीख को आएंगी, ये एक मीटिंग के द्वारा आने वाले हफ्ते में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। और 7 तारीख का जो समागम है वो दुर्गापुर गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल जो हमारा CBSE एफिलेटेड स्कूल है उसके बारे में आप सभी को ज्ञात है और वहाँ का जियोग्राफिकल लोकेशन काफ़ी अच्छा है। चूँकि ये बड़ा समागम है इसलिए हमने उस स्कूल के प्रांगण में उनके प्ले ग्राउंड में ये 7 तारीख का जो गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व है उसको मनाने का ये समागम का जगह निश्चित की है। वहाँ भी ये सारे जो हमारे वक्ता हैं जो हमारे लीडर्स हैं वो सारे वहाँ भी पहुँचेंगे और आप सभी संवाद माध्यम के द्वारा हम यहाँ की सभी पब्लिक को, सभी सिख संगत को, गुरु नानक नाम लेवा संगत को भी ये सूचित करना चाहते हैं कि सभी आप ये 6 तारीख और 7 तारीख के समागम में पहुँच के इस हमारे नाजरीन आज की खबरें बस यहीं तक। कल फिर होगी आपसे मेरी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।